خبر کے ساتھ بلٹن کا آغاز کریں گے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں ایک بار پھر توسیع کر دی گئی۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کی ہے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ اب 31 اکتوبر کر دی گئی ہے۔ اشرف اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھا جائے 14 اکتوبر آج آخری تاریخ تھی انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی، اور جس میں یہاں پہ کراچی ٹیکس بار اور دیگر ٹیکس بار اور ٹریڈ باڈیز کراچی چیمبر فیڈریشن نے مطالبہ کیا تھا کہ اس میں آخری تاریخ میں توسیع کی جائے، کیونکہ اسلام آباد میں عام تعطیل ہے جس کی وجہ سے بینک بھی بند ہیں، دفاتر بند میں جو مشکلات ہوئی، جس پہ ایف بی آر نے جو ہے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے، اور اس سے قبل یہ آج آخری 14 تاریخ تھی۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو انکم ٹیکس کی تاریخ میں توسیع انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 214A کے تحت کی گئی ہے۔ جی اچھا اشرف، یہ بتائیے گا کہ اچھی بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر توسیع کی گئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ تاجروں کو مزید سکون دینے کے لیے، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ وہ سیریس نہیں ہوں گے، مزید تاریخ میں بڑھانے کا مطالبہ کریں گے، کیونکہ اسی طرح اگر ایف بی آر تاریخ پہ تاریخ بڑھاتا گیا تو پھر کوئی بھی اس میٹر کو سیریس تو نہیں لے گا۔ جی دیکھا جائے بالکل صحیح یہ آپ کا سوال ہے، اور دیکھا جائے کہ یہ دوسری بار اس مالی سال میں جو ہے اس کا اضافہ کیا گیا۔ پہلے 15 روز کی توسیع کی گئی تھی، اس سے قبل قانون کے تحت جو ہے انکم ٹیکس گوشوارے 30 ستمبر 2024 تک بھرنے تھے، جس میں مسائل ہوئے تھے، گوشوارے جمع نہیں ہو پا رہے تھے آن لائن بھی، جس کی درخواست پر جو ہے 15 روز کی توسیع کی تھی 14 اکتوبر تک۔ اب ایک بار پھر جو ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں، تو تمام بینکس بھی جو انکم ٹیکس سے ریٹرن لیتے ہیں، جو ٹیکسز وغیرہ جو سیل ٹیکس جمع کرانا ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے پنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی عام تعطیل ہے، ساتھ ہی ایف بی آر کے دفاتر بھی جو ہے وہ بند ہوں گے، جس کی وجہ سے مشکلات ہو سکتی ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے فیڈریشن ہاؤس کراچی چیمبر ٹریڈ باڈیز اور یہاں پہ ٹیکس بار نے مطالبہ کیا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے ایف بی آر نے مزید جو ہے توسیع کر دی، جو 14 اکتوبر سے بڑھا کے 31 اکتوبر کر دیے، اور ساتھ یہ بھی اندیا دیا ہے کہ جیسے چیئرمین ایف بی آر نے یہ بھی میسج دیا تھا کہ جو اس بار جو ہے ریٹرن فائل نہیں کرے گا وہ فائل رہ جائے گا۔ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں بے ضابطگیاں، اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی کے قیام کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں بے ضابطگیاں، اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم ہو چکی ہے۔ کمیٹی سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر قائم کی گئی ہے۔ کمیٹی کی وزیر اعلیٰ معائنہ انکوائری اینڈ عمل درآمد ٹیم کی چیئرپرسن ڈاکٹر شیرین مصطفیٰ ناریجو سربراہ مقرر کی گئی ہیں۔ کمیٹی کے قیام کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیٹی میں سیکریٹری اوقاف زکوٰۃ و عشر محمد مرید رحمو، ڈائریکٹر سائبر کرائم مجید اکبر خان، قائم مقام رجسٹرار پاکستان ڈینٹل میڈیکل کونسل، آئی بی اے سکھر کے ماہر، آئی بی اے کراچی کے ماہر کو بھی ممبر کے طور پر شامل کیا گیا۔ کمیٹی ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں بے ضابطگیوں کا تعین کرے گی۔ کمیٹی وقت سے پہلے پیپر لیک ہونے کی فورنزک تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی مکمل طور پر تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ کمیٹی سزا و جزا کا تعین بھی کرے گی۔ کمیٹی 15 روز کے اندر رپورٹ چیف سیکریٹری سندھ کو پیش کرے گی۔ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں 3 ارب روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں۔ ایل ڈی اے مختلف مد میں 2 ارب 45 کروڑ سے زائد کی وصولیوں میں ناکام۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے بے ضابطگیوں کا کچا چٹھا کھول دیا۔ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کرپشن کا انکشاف، اربوں روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ مالی سال 2022-23 نے ایل ڈی اے میں کرپشن کا پردہ فاش کر دیا۔ 3 ارب روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں۔ ایل ڈی اے مختلف مد میں 2 ارب 45 کروڑ روپے سے زائد وصولیاں کرنے میں ناکام۔ مختلف ٹھیکیداروں کو 5% کال ڈپارٹ جمع کرائے بغیر 1 ارب 18 کروڑ روپے سے زائد کے ٹھیکے دے دیے گئے۔ 5 ٹھیکیداروں کی 2 کروڑ 41 لاکھ روپے ادائیگیاں بھی نہیں کی۔ ایل ڈی اے سٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 22 لاکھ روپے وصول کرنے میں بھی ناکام۔ بے نظیر بھٹو ٹاؤن شپ لیاری کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے 19 کروڑ روپے تھے زائد کے ترقیاتی کاموں کی مد میں 5% زیادہ رقم بھی خرچ کر دی۔ سینئر وزیر شجر انعام میمن کا ریڈ لائن بیاچی منصوبہ ٹائم لائن سے پہلے مکمل کرنے کا حکم۔ کہتے ہیں یہ منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہے، ہمیں ہر حال میں اس وقت بر وقت تکمیل کو یقینی بنانا ہوگا۔ سندھ کی سینئر وزیر نے ریڈ لائن منصوبے کے اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا،
रेड लाइन बीआरटी सिंध हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह है। रेड लाइन बीआरटी का मकसद ट्रैफिक के दबाव को कम करना और लाखों कराची वालों के लिए एक पायदार काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट का हल फराहम करना है। मज़ीद ताख़ीर से बचने के लिए दरपेश मसाइल को एक हफ्ते के अंदर हल किया जाना चाहिए। इजलास में ट्रांस कराची के हुकाम, कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स के जारी काम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। शहर कायद का फ़ज़ाई मयार ख़राब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सुबह के औकात में कराची 5वें नंबर पर आ गया, जबकि पाकिस्तान में कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 4थे नंबर पर रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से आयमा खान की रिपोर्ट। दरख्त कम, धुआं ज्यादा, कराची में फिजाई मयार खराब होने लगा। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। शहर में आलूदा ज़रात की मिकदार 100 पार्टिकुलेट मीटर से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। माहिर माहौलियात यासिर हुसैन दरिया का कहना है कि शहर में समंदरी हवाएं बंद हैं। हवाओं की सिमत में तब्दीली फिजाई आलूदगी में इजाफा कर रही है। जितनी आलूदगी शहर में गाड़ियों से निकल रही है और 60% जो है वो गाड़ियों से निकलती है फिजाई आलूदगी, तो वो शहर के अंदर ही ट्रैप रहती है। सो ये आप समझें कि जो हमारी हवा है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जैसे मछलियाँ पानी में रहती हैं, हम इस गंदी हवा में अब ट्रैप हुए हैं। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। माहिरीन के मुताबिक शहरी घरों से बिला ज़रूरत ना निकलें, जबकि बाहर निकलने की सूरत में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। सरकारी कॉलेजेस में पहली बार 4 साला बैचलर प्रोग्राम की तैयारियां। कराची के 12 कॉलेजेस में BS प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। प्रोग्राम के लिए 15 फैकल्टीज मुकर्रर की गई हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट। शिकायत की तलबा के लिए अच्छी खबर। कराची सिंध भर के सरकारी कॉलेजों में पहली बार साल 2025 से 4 साला बैचलर्स प्रोग्राम की तैयारियां शुरू। कराची के 12 कॉलेजेस में BS प्रोग्राम का आगाज हो गया। 4 साला BS प्रोग्राम के लिए 15 फैकल्टीज रखी गई हैं। BS प्रोग्राम में कीमिया, रियाजी, तिबियात, हैवानियात, BBA, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की फैकल्टीज शामिल हैं। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस नवीद रब का कहना है कि 4 साल BS प्रोग्राम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 12 कॉलेजों का कराची यूनिवर्सिटी से इलाहाक होगा। कराची में तकरीबन 12 कॉलेजेस हैं जहां पर अब हम BS प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और तकरीबन 15 फैकल्टीज़ हैं जिसमें ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे इस वक्त कॉलेजेस में मौजूद हैं, जो ADA प्रोग्राम में भी हैं और आगे फर्दर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी में किसी भी वजह से वो एडमिशन्स अगर नहीं ले सकते हैं, वो अपने कॉलेजेस के अंदर इंशाल्लाह अपने BS एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। जामियात कॉलेजों से इल्हाक करने की कोई फीस वसूल नहीं करेंगी। शाह फैसल टाउन के रिटायर्ड मुलाजमीन का बड़ा मसला हल हो गया। कई साल से रुके वाजिबात की अदायगी। इस हवाले से रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शाह फैसल टाउन के रिटायर्ड मुलाजमीन खुशी से निहाल। कई साल से वाजिबात की अदायगी का इंतजार खत्म। रिटायर्ड मुलाजमीन और इनके लवाहिकीन में 2 करोड़ रुपए तकसीम कर दिए गए। शाह फैसल टाउन के मुंतखब नुमाइंदों को रिटायर्ड मुलाजमीन के 8 करोड़ रुपए के वाजिबात और खाली खजाना विरसे में मिला था। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक के मुताबिक किफायत शारी से 4 करोड़ रुपए पहले और अब 2 करोड़ रुपए रिटायर्ड मुलाजमीन को दे रहे हैं। मैं यहाँ आपकी तवज्जुह से और मीडिया पे ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं जब तक रहूंगा तो मैं जो बकायाजात होंगे वो क्लियर करके जाऊंगा। मेरे बाद कौन आता है, वो क्या करता है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और मैं इनसे ये कहूंगा कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं आपके बकायाजात पूरे आपको अदा कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है इतना आसान काम है। हमें फंड कहीं से मिल नहीं रहे, हम टैक्स जमा करके उसमें तरक्याती काम भी हमें कराने हैं, ऑफिस के खर्चे भी चलाने हैं और इनको भी पेमेंट करनी है। मरहूम शौहर के वाजिबात लेने वाली खातून फंड ताखीर से मिलने पर शिकवा करती रहीं। वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश बोले, ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसके तहत जल्द अज जल्द रिटायर होने वाले मुलाजमीन को इनका हक दिया जा सके। 2.5 साल के बाद मुझे मिल रहा है और वो भी किस्तों में मिल रहा है। और फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं जिस परेशानी में हूँ, मतलब कफन दफन के पैसे भी मुझे नहीं मिले, मतलब और पेंशन का सिलसिला भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो मैं तो वाकई में बहुत ही फिक्रमंद, मतलब आगे एक जो कोटा था उस पर मेरे बेटे को मिल सकता था, लेकिन जो कि मैंने अभी देख लिया एफर्ट्स, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी और मैं बहुत फिक्रमंद हूँ आगे के एम्प्लॉयज़ के लिए। बिल्कुल आपके तवसत से ये बताना चाह रहे हैं, कौंसल का ये किरदार रहा है कि कौंसल हमेशा से इस हक में रही है कि रिटायर मुलाजमीन की पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन आपने मुश्किलात की बात की, तो महदूद वसाइल को रखते हुए, महदूद वसाइल है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं आ रहा।
जब से चेयरमैन साहब ने और हमने जो है ना हल्फ उठाया तब से आज तक हमें कोई जो है ना ग्रांट नहीं दी गई। हम लोग इसी टैक्सेस जमा करके और ओजीटी में जो है ना हम लोगों की पेमेंट कर रहे हैं। शाह फैसल टाउन के रिटायर्ड मुलाजमीन को अदायगियों का हजम अभी भी 2 करोड़ रुपए पर रुका हुआ है, जिसकी अदायगी के लिए इंतजामिया को मजीद मेहनत करने की जरूरत है। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। HEC सिंध और टेक वैली गूगल के दरमियान MOU साइन। तकरीब का इनेकाद वज़ीर आला हाउस में किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि गूगल के साथ मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत बड़े एहसास की बात है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। सिंध के टेक्नोलॉजी के तलबा के लिए अच्छी खबर, गूगल की शराकत से तालीम हासिल कर सकेंगे। HEC सिंध और टेक वैली में MOU साइन। वज़ीर आला सिंध का तालीम की तब्दीली टेक्नोलॉजी के जरिए करने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस में तकरीब का एहतमाम किया गया। नूर अहमद समूह और अब्बास बलोच ने MOU पर दस्तखत किए। मुराद अली शाह ने गूगल के साथ मफाहमती याददाश्त को एजाज करार दे दिया। 14,000 फैकल्टी मेंबरान और 2 लाख तलबा बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आज सिंध में तालीमी तब्दीली के सफ़र का अहम दिन है। ताउन से गूगल फॉर एजुकेशन टूल्स को 30 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों तक तक़वियत देगी। गूगल वर्क्स स्पेस के ज़रिए असातिज़ा की तदरीसी तरीक़ेकार में इजाफा होगा। टेक वैली के रीजनल हेड का कहना था कि गूगल सिंध हुकूमत के तालीम से मुंसलिक इदारों से शराकत दारी कर रहा है। वज़ीर आला सिंध ने 1500 स्कॉलरशिप्स की पेशकश पर गूगल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला हाउस में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, चेयरमैन HEC सिंध प्रोफेसर तारिक रफ़ी, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अब्बासी, सेक्रेटरी IT नूर अहमद समो, सेक्रेटरी U&B अब्बास बलोच और दीगर मौजूद थे। मंगोपी टाउन इंतजामिया का ऐसा इक़दाम UC1 माई गाड़ी के 21 किलोमीटर तवील बरसाती नाले की 21 साल बाद सफाई का आगाज हो गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। बल्दियाती हुकूमत शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म। मंगोपीर के बड़े बरसाती नाले की सफाई की तैयारी। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही बोले, बरसाती नाले की सफाई से 22 गोटों की निकासी आब के निज़ाम में बेहतरी आएगी। इस वक्त आप देख रहे हैं ये 22 गोटों का जो नाला जो मुख्तलिफ एरिया से, इसके साथ साथ जो है वाटर बोर्ड का जो ओवरफ्लो है वो भी यहीं से उनका गुजर गया है, यही रास्ता है उनका। तो इसकी सफाई की ये बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पीरबश गोट और ये सराउंडेड जो गोटे हैं वो काफ़ी परेशान थे, जिसकी वजह से रोडें मुतासिर, रास्ते मुतासिर थे। तो इसको हमने ज़रूरी समझा, अपने टैक्सेस से हमने जमा करके यहाँ पे कोशिश की है कि इस नाले को हम साफ़ करें। टाउन काउंसलर जावेद बरोही के मुताबिक हब फिल्टर प्लांट और पंपिंग स्टेशन का ओवरफ्लो भी इसी नाले से गुजरता है। गोठों के मकीनों ने नाले की सफाई के साथ सड़क तामीर करने का मुतालबा भी कर दिया। सीवरेज का मसला तो हमारे से तकरीबन 20 से 21 साल हुए यहाँ पर सीवरेज पे कोई काम नहीं हुआ था इसकी सफाई के हवाले से। तो चेयरमैन साहब की बेहद शुक्रिया अदा करूँगा मैं कि जिन्होंने बर वक्त इस पे एक्शन लिया। हमारे पीरबश कोट का खासकर जो रास्ता है वो बहुत मुतासिर और हम लोग इस पर काफ़ी परेशान हैं और असल मसला इसकी निकासी का, और ये अपने चेयरमैन साहब की मेहरबानी से हाजी नवाज बरोही के जो आज यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे इन मसाइलों को देख रहे हैं। मंगोपीर टाउन के 70% इलाकों के निकासी आब का बोझ माई गाड़ी का बरसाती नाला उठाता है, जिसकी सफाई 1 माह में मुकम्मल करने का दावा किया जा रहा है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद के बच्चों में खुन्नाक के केसेस में इजाफा होने लगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद असगर के मुताबिक एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इस हवाले से फरहान खान ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। कराची में खुन्नाक वायरस पंजे गाड़ने लगा, तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में केसेस बढ़ने लगे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद असगर ने बताया कि एक मोटी सुरमई झिल्ली गले और टॉन्सिल्स को ढांपती है, जिसके बायस सांस लेने और निगलने में दुश्वारी होती है। अलामात में ये है कि बुखार होगा, गले में दर्द होगा, यहाँ पे गुठलियाँ होती हैं वो सूज जाएंगी, निगलने में दर्द होगा, सांस में तकलीफ़ होगी और बिल्कुल खाना पीना बंद हो जाएगा। फिर सांस लेने में भी काफ़ी सारी दुश्वारी होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर मोहम्मद असगर के मुताबिक खन्नाक वायरस एक से दूसरे फर्द में आसानी मुंतकिल हो सकता है। मुतासर फर्द के खांसने या छींकने से ये वायरस लग सकता है। ये डिफ्थेरिया जिस पेशेंट को हो जाती है तो उसके मतलब खांसने से, छींकने से जो भी अतराफ में कोई भी अनवैक्सीनेटेड बच्चा होगा या बुजुर्ग होगा जो जिसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी,
तो उसको लग सकती है ये बीमारी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि खुन्नाक एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर नाक और गले की झिल्लियों को मुतासर करता है। गले में खराश, बुखार और सर्दी लगना इसकी इब्तदाई अलामात हैं, जबकि शिद्दत बढ़ने पर यह गर्दन में सूजन पैदा करता है। इब्तदाई अलामत ज़ाहिर होने पर शहरी करीबी अस्पताल से मुआयना कराएं और डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन वैक्सीन लाजमी लगवाएं। एहतजाज के दौरान पुलिस का ख़वातीन और सहाफ़ियों पर तशद्दुद का वाक़या। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया रंजार के हुक्म पर IG सिंध ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी की सरबराही DIG स्पेशल ब्रांच फिदा हुसैन करेंगे। अनुषा जाफरी से तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब खराब हुई थी और प्रेस क्लब पर खवातीन समेत साथियों पर तशद्दुद का वाक़या हुआ था, वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया रंजार के हुक्म पे IG सिंध ने जो है वो तहकीकाती कमेटी बना दी है। 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसकी जो चेयरमैन है वो DIG स्पेशल ब्रांच फिदा हुसैन मस्तोई को मुकर्रर किया है, जिसकी सरबराही कर रहे हैं DIG वेस्ट इरफान बलोच और SSP AVLC आरिफ असलम राव भी जो है वो इस कमेटी के मेंबर में जो है वो शामिल है। कमेटी 5 रोज के अंदर जो है वो रिपोर्ट तैयार करके जो है वो पेश करेगी। रिपोर्ट के साथ जो कमेटी अपनी सिफारिशात भी जो है वो पेश करेगी। हुक्म नामे की कॉपी मुताल्लिका हुकाम को अरसाल जो है वो कर दी गई है। अब 5 रोज बाद जो भी कमेटी की सिफारिशात होंगी उसके मुताबिक जो है वो जो भी मुलव्वस पाया जाएगा और जिसकी भी जो है वो कसूरवार होगा उसको जो है वो मुअत्तल किया जाएगा और ये वज़ीर दाखिला सिंध को रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।